Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 4 Solution Focused Counseling and Integrative Counseling. This Unit 4 is from Block 2, Group B, MPCE 023 Interventions in Counseling. So as you must be knowing, whoever has subscribed to my channel, that I am making videos into small sections so that this whole chapter would be covered and with proper description. So today I am going to make video on meaning of solution focused counseling and key assumptions of solution focused counseling. These two topics we are going to cover today. So let us start. Let me tell you, wherever you are seeing this red tick mark, that means this portion has already been there in the exam, and there are possibilities that those sections would be included in future also. So let's start. I am trying to make video in both the languages so that every student would get help out of it, since I am getting comments and messages from everyone that you must tell some English words also. So that is why I am using more English. दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हर एक चैप्टर के मैं सब सेक्शंस में वीडियो बना रही हूँ, वीडियो जिससे छोटा हो और ज़्यादा डिटेल में बन सके. जिस भी सेक्शन में आप रेड टिक मार्क देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी एग्जाम्स में आएगा. आज हम मीनिंग ऑफ सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग एंड की एजम्पशंस कवर करने वाले हैं. सोल्यूशन फोकस्ड, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, ये एक ब्रीफ थेरेपी है. ब्रीफ थेरेपी मतलब छोटी थेरेपी है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेती. एंड इट ब्रीफ मीन्स अ स्मॉल पोर्शन, स्मॉल टाइम टेकिंग. सो दिस solution focused counseling takes a lesser time as compared to rest of the models. इसमें ये हम सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, और प्रॉब्लम की हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देते. तो सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी जो होती है, ये पेशेंट की या क्लाइंट की स्ट्रेंथ को, कॉम्पिटेंस एंड उस पर ज़्यादा जोर देती है एज़ कम्पेयर टू उसमें डेफिशिएंसी किसकी है, या फिर वीकनेसेस क्या हैं, या उसकी लिमिटेशंस क्या हैं. So this therapy mainly focuses on the strength and competence of the client. So number of sessions, generally it is 10 sessions, but on an average it is 4 to 5 sessions होते हैं on an average. 10 sessions तक हो सकता है मैक्सिमम. कभी कभी सिंगल सेशन में भी पूरा हो जाता है हमारा. डिपेंड्स कि जो क्लाइंट है उसका कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और हम कितनी जल्दी उसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं. सो ज़्यादातर जो काउंसलिंग अप्रोचेस होती हैं वो प्रॉब्लम पे फोकस करती हैं, एंड इसमें सोल्यूशन फोकस में हम क्लाइंट के सोल्यूशंस पे फोकस करते हैं, क्लाइंट की कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं, और हम इसकी डेफिशिएंसीज पे ध्यान नहीं देते हैं. उसकी जो हमारा मेन आइडिया होता है वो ये होता है कि ये इसी वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. अगर जैसे बड़ी बाकी मॉडल्स हैं, रेस्ट ऑफ दी थ्योरीज हैं, थेरेपीज हैं, उसमें क्या हो रहा है, दे आर एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम. दैट इज वाई व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू नो अ लॉट ऑफ पास्ट थिंग्स एंड ऑल, एंड इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, history taking and all. So solution focused counseling actually is a positive approach. Because why? Because we focuses on the client, we put emphasis on the solution generation and strengths and assets of the client. That is why it is a positive approach. So now this may be trend of IGNOU exam is that they directly ask questions depending upon the headings, but if somehow it comes in details, then you must know why it is called a positive approach. So that is why I was trying to explain that. Now this meaning of solution focused counseling is, you already know that we focuses on the client. We want to help client to achieve its goal, and this approach does not focus on the past, that I have already told you. Instead we focus on present and future, and major emphasis is on the solution of the problem. Lambert and his colleagues, they concluded that effective outcome comes when primarily when we focus on 4 common factors. Factors are also called non-specific factors. Common factors are
वाई इट इज़ कॉल्ड कॉमन फैक्टर और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर? बिकॉज ये वाला जो ये 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर के ऊपर ये काम करती है सोल्यूशन फोकस काउंसलिंग: क्लाइंट, प्रॉब्लम, सेटिंग्स एंड थ्योरेटिकल मॉडल्स. These are the 4 common factors which is always present in all the therapies. क्योंकि ये चारों जो फैक्टर है, क्लाइंट, प्रॉब्लम, सेटिंग्स एंड थ्योरेटिकल मॉडल, ये सारी की सारी थेरेपीज में होता है, यानी कि बहुत कॉमन चीज़ है, इसीलिए दीज आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स. And non-specific factors, that is why it is called non-specific, because it is not specific to a particular therapy, it is common to all the therapies. So this they may ask why what are the non-specific factors, so you need to answer client is always there in every therapy, problem is always there with the client, and settings are very important in every therapy, and theoretical model, which model you are using, that is also very common thing. We are using a model, particular model we are following. So these are the 4 non-specific factors. Now what these factors and their percentages they have told us, like 4 फैक्टर जो जैसे मैंने बताया, क्लाइंट फैक्टर जो है ये 40% चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट अपने साथ लेके आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है? क्लाइंट इज ब्रिंगिंग स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, परसेप्शंस, वैल्यूज, सोशल सपोर्ट, रेजिलियंस एंड अदर रिसोर्सेज. ये सारे चीज़ें क्लाइंट के साथ हमें मिलते हैं. सो 40% क्लाइंट पे डिपेंड होता है कि हमारी थेरेपी कितनी सक्सेसफुल होने वाली है. सेकेंड इज रिलेशनशिप फैक्टर. रिलेशनशिप फैक्टर इज 30% रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द थेरेपी. वाई? बिकॉज क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है अपने काउंसलर के साथ, रेस्पेक्ट, कोलैबोरेशन, एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन, that is very important from us. That means client and counselor both are equally responsible when relationship factor we assume. So next common factor is hope factor. Hope factor is 15%. Hope factor is 15% responsible for the change. So client's positive expectancy and anticipation of change. क्लाइंट कितना सोचता है कि वो सक्सेसफुली कुछ अचीव कर पाएगा, तो कितना होपफुल है. तो अगर वो होपफुल है तो 15% चांसेस बढ़ जाती हैं उसकी आगे बढ़ने की. मॉडल्स एंड टेक्निक्स फैक्टर, दिस अकाउंट्स टू 15% चेंज, यानी कि हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, what kind of model we are using, that is responsible for 15% success of the therapy. So counselor, theoretical model and intervention techniques, these are very much important. So solution focused counseling, what does it believe on? It believes on the strength of the client and believes on the capacity of the client. Client की कितनी capacity है, उसमें strength कितनी है, उस पर depend करता है. एक और थेरेपी जो इससे मिलती जुलती है वो है solution focused brief counseling, CFBC. ये एग्जाम में आता है. CFBC जो है स्टीव डी शेजर ने डेवलप की थी 1985 में. सो इट फोकसेस ऑन द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड सो दैट वी रीच टू द रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल. सो जल्दी पहुंचने के लिए सोल्यूशन तक ये ही सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ काउंसलिंग ही यूज़ की जाती है. सो आवर फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सोल्यूशन फोकस, बिकॉज हम इस टेक्निक में सोल्यूशन पे फोकस्ड होते हैं, हम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते. तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सोल्यूशन फोकस्ड. ब्रीफ का मतलब छोटी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्रीफ थेरेपी. एंड एक्टिव रोल बहुत ज़रूरी है क्लाइंट का, और सक्सेस की थेरेपी, जो थेरेपी की सक्सेस है वो भी डिपेंड करती है कि क्लाइंट कितना इसमें इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले कर रहा है. नाउ अगर सपोज क्लाइंट जो है डिप्रेस है, they are giving us an example to understand it more. Like if some client is having a depression, it doesn't mean that patient is always depressed. There would be some time when that patient wouldn't be in depression. So अगर हम डिप्रेशन केस को देखें तो वो बंदे को सारे टाइम थोड़ा ना डिप्रेशन रहता है 24 घंटे 24/7, ऐसा नहीं होता. उस क्लाइंट को कुछ टाइम पे ऐसा भी होगा दैट पर्सन वुड बी फीलिंग हैप्पी. सो वी विल कंसीडर दैट सिचुएशन. उस सिचुएशन को देखेंगे कि वो क्या सिचुएशन है जब उसको डिप्रेशन नहीं होता, एंड देन वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स सो दैट वी कैन रिपीट
दैट सिचुएशन अगेन एंड अगेन। तो अगर डिप्रेशन नहीं है तो ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस है जब डिप्रेशन नहीं है, तो हम उन सर्कमस्टांसेस को फिर से क्रिएट करेंगे, मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम चली जाएगी। सो हमें इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रॉब्लम का कॉज निकालने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू फाइंड आउट कॉजेज एंड ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम। वी जस्ट वॉन्ट टू रिड्यूस द टाइम वेयर प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग. So since this therapy is short period therapy, that is why it is called brief. So this is how they have explained. Now we are coming to key assumptions of solution focused counseling. Again, red mark, that means it has already come in the examination and it will come in future also. Murphy 2008, इन्होंने हमें की एजम्पशंस बताए थे सोल्यूशन फोकस काउंसलिंग के. फर्स्ट इज इफ इट वर्क्स डू मोर ऑफ इट, इफ इट डजंट वर्क डू समथिंग डिफरेंट. सिंपल लॉजिक. इफ कोई भी चीज़ अगर काम कर रही है आपके लिए तो आप उसको रिपीट करिए बार बार, और अगर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है तो कुछ और करके देखिए, तब आपको सक्सेस मिलेगी. सो इट इज़ एप्लीकेबल इन एवरीबडीज लाइफ. अगर कोई चीज़ आपके लिए काम कर रही है तो आप बार बार करिए, कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं करती तो आप मत करिए, दूसरी चीज़ अप्लाई कीजिए. In every activity you can follow this. So in case of this solution focused counseling we can follow that. Second assumption is every client is unique, resourceful and capable of changing. हर एक client अब एक यूनिक होता है, यानी हम जितने क्लाइंट से मिल रहे हैं सब अलग अलग होंगे, कोई एक जैसे नहीं आएंगे, कोई एक जैसी सर्कमस्टांसेस लेके नहीं आएंगे, कोई किसी का सबका गोल एक सा नहीं होगा, सबके रिसोर्सेज एक से नहीं होंगे. सो देयर वुडंट बी एनी सिमिलरिटी अमंग क्लाइंट्स. Like they might be having different circumstances, different goals, different resources. So every client is very unique and they are resourceful. That means they have got the capability to find out the ways, to find out the solution, to keep one goal, meaningful goal, to set one goal. And that client himself or herself is capable of change, and they can create different solutions, they can find different solutions, different opportunities. तो इसमें क्या बता रहे हैं, क्लाइंट यूनिक होता है, ये मैंने बता दिया आपको हिंदी में. नाउ उसके अंदर उसी की स्ट्रेंथ से ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, यानी उसके अंदर रिसोर्सेज खुद मौजूद हैं, वो खुद अपने कैपेबिलिटी से सोल्यूशन निकाल सकता है, चेंज ला सकता है, वो खुद कैपेबल है. हाँ, उसको याद नहीं है कि, या वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहा कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है. दैट इज़ वाई काउंसलिंग के लिए अप्रोच किया है इसने, और हमें उसको वही चीज़ याद दिलाना है, उसको उसकी सॉल्यूशंस जो वो ढूंढ सकता है अपनी प्रॉब्लम के लिए वो बताना है. कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स एनहांस सॉल्यूशन, दिस इज द थर्ड असम्पशन. अगर क्लाइंट एंड जो काउंसलर हैं दे हैव गॉट अ गुड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अगर दोनों जो काउंसलर और क्लाइंट हैं मिलजुल के फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम को, तो जल्दी गोल अचीव हो सकता है. सो क्लाइंट और काउंसलर का कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो तभी हम गोल को एकम्प्लिश कर पाएंगे सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके. फोर्थ असम्पशन इज क्लाइंट फीडबैक इम्प्रूव्स आउटकम. सो अगर इफ क्लाइंट गिव्स अस फीडबैक कि सी आई हैड फाउंड दैट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड व्हेन आई यूज दैट सोल्यूशन आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम. So we will have to think about some more solutions, because if that solution is creating other problem, then we have to rethink again. So this is what is called feedback of the client will apply the solution and then come back to us and tell us then this has happened, and then we will further work. So जब client feedback देता है, feedback देना मतलब कि लौट के जवाब देना, बताना कि भाई मैंने ये solution किया था तो मुझे ये दिक्कत आई. फिर काउंसलर एंड क्लाइंट फिर से साथ बैठेंगे, फिर से दोबारा सोचेंगे प्रॉब्लम के बारे में, सोल्यूशंस के बारे में, एंड फिर से दूसरा सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. फोर्थ अजम्पशन क्या है? फोर्थ अजम्पशन है नो प्रॉब्लम इज कॉन्स्टेंट. दिस इज कॉमन थिंग. none of the problems are constant. There are situations where problem does not exist. So हमें उन exceptions को देखना है. We need to find out those exceptions where problem was not existing. सो हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम किस टाइम पे नहीं थी. हमेशा तो रह नहीं सकती प्रॉब्लम, कभी तो ऐसा होगा प्रॉब्लम नहीं थी. तो प्रॉब्लम नहीं थी तो वो कौन सी सिचुएशंस थी जब प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम क्लाइंट से पूछेंगे कि वो कौन सा रिसेंटली जो प्रॉब्लम ऑकर नहीं हुई है वो कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जब नहीं हुई थी. फिर हम उन कंडीशंस को एक्सप्लोर करेंगे. हम एनकरेज करेंगे क्लाइंट को कि वो दोबारा वही चीज़ें रिपीट करे जब प्रॉब्लम नहीं होती है.
और क्या होगा, क्या ज़्यादातर वो क्या करता है ऐसा कि प्रॉब्लम आती है, कौन सी सिचुएशंस होती है जो प्रॉब्लम आती है, ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो व्हेन वी विल आस्क द क्लाइंट अगेन एंड अगेन कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस वेयर प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, देन वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन. Sixth assumption is big problems do not always require big solutions. So see, to achieve a big solution we have to move further by step process. So if you have solved a big problem, if you have broken the big problem into smaller ones and you have started finding small solutions for the small problem, and then those small solutions give rise to a solution of a big problem, that means a ripple effect will happen. So इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर बड़ी, हमेशा सिक्स्थ assumption बोल रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम का हमेशा बड़ा सोल्यूशन नहीं होता, कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम के छोटे सोल्यूशन होते हैं. तो हम अगर छोटा सा स्टेप लें और फिर छोटे छोटे स्टेप बार बार रिपीट करते जाएं तो वो रिपल इफेक्ट होगा, जिससे बड़ी आसानी से ये बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा और बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा. रिपल इफेक्ट होता है जब आप जैसे पत्थर डालते हैं पानी में तो उसमें ऐसे वेव्स चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू हो जाती हैं, उसको हम रिपल कहते हैं. तो इससे रिपल इफेक्ट बना है. रिपल इफेक्ट मतलब अगर आपने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला तो धीरे धीरे अगली प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है. जैसे कि सपोज कोई धागा उलझ गया तो आप धागे को पूरे एक बार में थोड़ा ना सुलझा पाते हैं. आपको क्या करना पड़ता है, आप पहले एक छोटा सा गांठ सुलझाते हैं एंड देन उससे दूसरी गांठ तक पहुंच जाते हो, आप दूसरी गांठ को सुलझा पाते हो. तो दोज नॉट्स दैट यू आर ओपनिंग वन आफ्टर द अदर एंड दैट विल लीड टू अ प्लेन थ्रेड. सो एक अच्छा सुलझा हुआ धागा मिल जाता है जब हम बार बार गिठाने सुलझाते जाते हैं. तो सेम इज विद दिस, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और छोटे सॉल्यूशन से ही हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ ओ हैनलन एंड वीनर डेविस in 1989 explained the assumptions which are the foundation of solution focused therapy. जो ओ हैनलन एंड वीनर डेविस हैं, इन्होंने 1989 में कुछ एजम्पशंस बताए थे जो सोल्यूशन फोकस थेरेपी का फाउंडेशन है. फाउंडेशन मतलब बेस है. अगर हमें ये एजम्पशंस हम फॉलो करेंगे तो ज़रूर हम इस थेरेपी को अच्छे से कर पाएंगे. फर्स्ट थिंग इज़ पीपल हैव स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज एंड एबिलिटी टू रिजॉल्व द चैलेंजेस दे फेस इन लाइफ. हर एक इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होती है, रिसोर्स होते हैं और एबिलिटी होती है चैलेंजेस को लाइफ में फेस करने की. सेकेंड, चेंज इज़ ऑलवेज पॉसिबल एंड इज़ ऑलवेज हैपनिंग. चेंज हमेशा हो सकता है और ये होता आ रहा है हमेशा से. द काउंसलर्स जॉब इज़ टू हेल्प क्लाइंट आइडेंटिफाई द चेंज दैट इज़ हैपनिंग एंड टू हेल्प देम ब्रिंग अबाउट इवन मोर चेंजेस. जो काउंसलर का जो काम होता है इसमें वो होता है कि क्लाइंट को हेल्प करे आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या चेंज हो रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड कैसे और ज़्यादा चेंजेस लाए जा सकते हैं. वो काउंसलर की ड्यूटी है. Now, fourth assumption is most problems do not require a great deal of gathering of historical information to resolve them. It is saying कि प्रॉब्लम जो है, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई पुरानी हिस्ट्री निकालने की ज़रूरत नहीं होती है. फिफ्थ इज दिस रिजोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम डज नॉट रिक्वायर नोइंग दैट व्हाट कॉज्ड इट. फिफ्थ एजम्पशन कहता है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसका रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसका कारण क्या था. सिक्स्थ है स्मॉल चेंजेस लीड टू मोर चेंजेस. यानी कि छोटे चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. सेवन्थ इज विद रेयर एक्सेप्शंस क्लाइंट्स आर द मोस्ट क्वालिफाइड पीपल टू आइडेंटिफाई द गोल ऑफ थेरेपी. इनका कहना है कि कभी कभी कुछ कंडीशंस को छोड़कर, रेयर एक्सेप्शन मतलब कुछ कंडीशंस को छोड़कर, क्लाइंट जो होता है सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन है जो आइडेंटिफाई कर सकता है अपने गोल को, थेरेपी में जो भी हम गोल रखते हैं. अब रेयर एक्सेप्शंस कौन कौन से बोल रहे हैं, जैसे कि इलीगल गोल हो गया चाइल्ड अब्यूज़. चाइल्ड अब्यूज़ उसका गोल नहीं होना चाहिए तो गलत है ना. हम उसको ये तो ना बोलेंगे जा बच्चे को मार, तो ये गलत है. ये एक्सेप्शन है जो उसमें हम उसको ये नहीं बोल सकते अरे हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो ऐसे ही पीटो. ऐसे ही अनरियलिस्टिक गोल्स वो भी एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि अनरियलिस्टिक गोल, अब अगर सपोज समबडी इज़ व्हील चेयर यूज़र एंड यू आर आस्किंग दैट पर्सन टू रीच टू द माउंट एवरेस्ट, सो दैट इज़ समथिंग अनरियलिस्टिक गोल, क्योंकि व्हील चेयर जाती नहीं है वहाँ,
और व्हीलचेयर के बिना वो बंदा कर नहीं सकता। तो ये एक्सेप्शंस है जो अनरियलिस्टिक गोल्स हैं। नाउ चेंज एंड प्रॉब्लम रिजोल्यूशन कैन हैपन क्विकली। जो चेंज है और जो प्रॉब्लम, ये दोनों ही जल्दी से हो सकते हैं, बस ये कि सही डायरेक्शन में कदम उठाया जाए। देयर इज़ ऑलवेज मोर देन वन वे टू लुक एट अ सिचुएशन। आप जैसे कि ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। सी अगर इफ़ यू आर लुकिंग एट द प्रॉब्लम through a one window, then you will get the same solution. If you will change your perception, then maybe problem would not exist. So अगर आप प्रॉब्लम को एक ही तरीके से सोचेंगे, एक ही तरीके से देखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। और अगर आप उस सिचुएशन को दूसरे तरीके से सोचना और समझना शुरू कर दें, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो ही ना, आप प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करती हो और आप ये समझ के बैठे हैं कि अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो आवर परसेप्शन डज मैटर. So friends, this was subsection of unit 4 that I have finished today. I hope my videos are useful to you. Do not forget to subscribe and like this video, and do comment below the videos so that I get motivated out of this. So शेयर करते रहिए वीडियो सबसे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सबसे बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो इस चीज़ का. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.